آج ہم لوگ ایپیسوڈ ریڈ کریں گے 24 میرا جو سنم ہے ذرا بے رحم ہے بھائی مدیحہ شاہ۔ ویلکم۔ ابھی وہ سب آفس کے کیبن میں داخل ہوئے تھے جب اسرار نے سچی سی نظر سب پر ڈالتے کہا، جبکہ ابھی وہ اپنی ہونے والی میٹنگ کی کچھ میل لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ تم بزی ہو؟ ظفر اس کو کام کرتے دیکھ آستین سے بولا تھا، جبکہ باقی سب بھی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سنان ہمیشہ کی طرح اپنا ہی کام پکڑ چکا تھا۔ ہاں یار، یہ میٹنگ ہمارے لیے خاص ہے، ایسا پاپا کا کہنا ہے، تو بس چاچو کی وجہ سے اس کام کو کر رہا ہوں۔ تم لوگ بتاؤ کیا نیوز لائے ہو؟ ذرا لیپ ٹاپ پر تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا جب سب کو ایک نظر دیکھا۔ بس ایک نیوز ہو تو بتاؤں؟ مطلب آپ کے ذرا نے لیپ ٹاپ بند کیا تھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ جو آذر نام کا شخص تھا وہ اب یہاں نہیں ہے۔ علی نے کہتے فائل سامنے ٹیبل پر رکھی۔ وہ کہیں گیا ہوا ہے؟ ذرا نے فائل اٹھاتے دوسرا سوال کیا۔ کیا یار، کبھی کوئی بات سیدھی بھی اس کو بتا دیا کرو۔ سنان ایک دم سے درمیان میں آیا تھا، جبکہ عمر علی نے چن کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ظفر لب بھینتے اس کو گوننے لگا تھا۔ ذرا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اظہر نام کا شخص اب کہیں بھی نہیں ہے، وہ اس دنیا سے ٹکٹ کٹا کر ہمیشہ کے لیے اوپر چلا گیا ہے۔ سنان نے ایسی وضاحت دی جیسے کوئی دوست ہو اس کا۔ سنان اب چپ۔ اس سے پہلے سنان دکھ سے آگے کی کہانی سناتا، ظفر نے غصے سے اس کو روکا تو سنان ضرار کو دیکھنے لگا جو اس کو یہ اشارہ کر رہا تھا کہ آگے اس کو بتا لینے دے۔ شروع سے بتاؤ، تم لوگوں کو کیا کچھ پتہ چلا؟ ذرا سنجیدگی سے بولا تو ظفر بھی پوری طرح متوجہ ہوا۔ آذر نامی شخص 15 سال پہلے ہی اس دنیا سے چل بسا۔ انفارمیشن ملی ہے کہ وہ یہاں کا رہنے والا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے سفیان سپاری ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ اپنی فیملی کو ہمیشہ کے لیے پاکستان بھیجنے والا تھا۔ پر اس کی بدقسمتی یہ تھی، جس دن اس کی فیملی جانے والی تھی اس دن ہی سفیان سپاری نے ان کو مروا دیا۔ یہ اظہر آدمی کون تھا؟ جیسے ظفر چپ ہوا، ذرا نے الجھتے پوچھا۔ اظہر کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا بوس، وہ CID میں کام کرتا تھا، جبکہ اس کے باپ کا اپنا بزنس بھی تھا۔ زیادہ انفارمیشن تو نہیں ملی کہ کون تھا، لیکن ہاں خبری نے یہ کہا ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو سب کو کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے لگتا ہو کہ قتل کیا گیا ہو۔ سفیان سپاری نے ہائی وے پر گاڑی حادثے سے مارا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے ذرا تو؟ ظفر اس کو سوچتے دیکھ بولا تو ذرا نے پین اٹھاتے گھمایا۔ فیملی میں کون کون تھا؟ ذرا نے عمر کو دیکھتے پوچھا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو پوری فیملی ایک ساتھ تھی۔ خبر یہ ہے کہ نہ صرف وہ خود اظہر اس دنیا سے گیا بلکہ اس کی بیوی بھی ساتھ ہی انتقال کر گئی، لیکن اس کے بچے بچ گئے، ایک بیٹا اور شاید ایک بیٹی بھی ہے۔ اگلی بار علی بولا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے پاس ایسا کیا تھا جو سفیان سپاری نے اتنا بڑا کام کیا؟ ذرا ایک ہی سوئی پر اڑا تھا۔ پتہ چل جائے گا کل تک، عمر نے فون پر میسج پڑھتے خوشی سے کہا۔ تھوڑا سا مشکل ہے کام، لیکن میں نے کہا ہے CID آفس میں سے انفارمیشن مل سکتی ہے اس آدمی کے بارے میں، کل تک سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ علی نے بھی رائے رکھی۔ ٹھیک ہے، ذرا کہتے میٹنگ کے لیے اٹھا۔ میڈم، اگر پارلر جانا ہے تو مجھے بتا دینا۔ آذر شانزے کے ساتھ چلتے راستے میں ہائے ہوا تو اس نے چن کر اس کو دیکھا تھا۔ کیوں، تم میرے ڈرائیور ہو گیا؟ شانزے نے بتیس نکالتے اس کو معنی خیز انداز میں پوچھا۔ تم کہو گی تو وہ بھی بن جاؤں گا، آذر نے محبت سے بھرے انداز میں کہا تو شانزے نے جلدی سے نظروں کا داخلہ بدلا۔ راستہ چھوڑو میرا، شانزے نے ادھر ادھر دیکھتے اس کو کہا، جو اس کو دیکھنے میں مگن ہوا کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو چلا جاتا ہوں، لیکن روم میں تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ بھی لینا اور آج کی پارٹی میں پہننا بھولنا مت۔ وہ کہتے الٹے قدم ہی گیا تو شانزے نے پہلے اس کو جاتے دیکھا پھر اپنے روم کی طرف گئی۔ آنٹی پلیز مجھے کچھ تو بتائیں، ایسی کون سی خبر پتہ چل گئی آپ کو جو آپ اتنا خوش ہیں؟ ایپک کب سے زیادہ بیگم کے ساتھ پارلر پر آئی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک زیادہ بیگم نے ایپک کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ ان کو زناب کے بارے میں کیا پتہ چلا تھا۔ کل رات میں نے بابا کی اور عثمان کی باتیں سنی، زناب نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، اس کے دادا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ زیادہ بیگم حد سے زیادہ خوش تھیں، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ آپ یہ مجھے پہلے ہی بتا چکی ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں تو ایپک کو غصہ آیا تھا۔ ہاں، لیکن جو رات پتہ چلا وہ تو مجھے پہلے نہیں پتا تھا۔ زناب نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات ذرا کو پتہ چلے کہ وہ شادی اس لیے کر رہی ہے کہ اس کا دادا بیمار ہے۔ مطلب ایپک کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ ایپک کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذرا اس کے ساتھ کوئی ہمدردی میں پیار کرے یا شادی کرے۔ زیادہ بیگم خوشی سے کہتی اس کو چھوڑ کر گئی، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ایپک نے کام کی بات جاننی چاہیے۔ فائدہ یہ ہے کہ ذرا زناب کے ساتھ خوش بھی ہے اور اب تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ حد سے زیادہ خوش ہو جیسے اس شادی سے۔ لیکن زناب کو یہ نہیں پتا کہ بابا نے زرار کو بتا دیا تھا زناب نے یہ شادی کس وجہ سے کی ہے۔ ہمیں بس یہ کرنا ہے، زناب کے دماغ میں یہ ڈالنا ہے کہ زرار اس لیے اچھا رہتا ہے کہ اس کو اس سے ہمدردی ہے، بس پھر دیکھنا وہ کبھی بھی زرار کے ساتھ نہیں رہے گی، طلاق لے کر چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ زیادہ بیگم نے اپنا سارا پلان سنایا تو وہ بھی خوشی سے مسکرائی، لیکن اب ان کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ پارٹی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ یہ پارٹی استنبول کے سب سے بڑے شاندار ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ اس پارٹی کے لیے بڑے سے بڑے اچھے قابل ایونٹ پلانر کو بلایا گیا تھا۔ اس پارٹی کی ساری ذمہ داری ابھی حمدان نے لی ہوئی تھی، وہ صبح سے ہوٹل میں موجود تھے۔ خوش آمدید بیٹا، تم سب یہاں؟ عثمان افغانی ظفر سنان لوگوں کو دیکھتے خوشی سے استفسار کرنے لگے۔ جی وہ انکل، ذرا سے ضروری کام تھا بس اسی لیے، علی جلدی سے بولا تو سنان زناب کو دیکھتے اس کی طرف گیا۔ اچھا بیٹا وہ اوپر ہے، جاؤ۔ عثمان افغانی کہتے باہر کی طرف گئے تو وہ سب اوپر کی طرف گئے۔ ارے تم سب! ذرا ابھی سیڑھیوں کی طرف ہی آ رہا تھا جب ظفر لوگوں کو دیکھ چکا تھا، کیوں نہ کہ انہوں نے آنے سے پہلے نہ کوئی کال کی تھی نہ کوئی میسج دیا تھا۔ ہاں ضروری بات ہے، چل۔ ظفر کہتے آگے اسٹڈی روم کی طرف گیا تو زرار بھی
साथ गया। क्या हुआ? ऐसे क्यों एक दूसरे को देख रहे हो? ज़रा ने सबके चेहरे देख संजीदगी से पूछा। इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन बहुत मुश्किल से, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो पता चला है वो कोई छोटी बात नहीं। उन्होंने कहते फाइल रखी तो ज़रा ने जल्दी से फाइल ली। अजहर जो शख्स था, पता चला कि वो किसी केस पर काम करता था जो सफियान सपारी के बारे में था। सफियान सपारी भी पहले यही काम करता था जो ज़फ़र करता है। तब इसके बाप ने यूनी में ऐसे काम शुरू किए थे। इसमें इसके आदमी पकड़े गए थे पहली बार, और उन सबको पकड़ने वाला कोई और नहीं, अजहर और उसकी टीम थी। पता चला ऐसे ही अजहर सफियान सपारी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। वो उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ पर नजर रखता। और एक दिन सफियान सपारी ने बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें वो कुछ बड़ा अपने साथियों को दिखाने वाला था। अजहर भी रूप बदल उस पार्टी में शामिल हो गया। बस वहाँ से शुरू हुई ये जंग। क्या था पार्टी में? ज़रा ने दो टोक पूछा। पार्टी में सफियान 25 अरब के हीरे बेचने वाला था। वो कहाँ से उसके पास आए थे कोई नहीं जानता, लेकिन अजहर ने बहुत चालाकी से वो हीरे वहाँ से गायब किए, जिस वजह से सफियान सपारी अजहर के पीछे पड़ा। अजहर ने तफसील से बात कही। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बॉस। उमर वो एक स्मगलिंग के कहते फाइल को ज़रा से लेते आगे के कुछ पेपर्स खोले और वापस रात को फाइल पकड़ाई। अजहर ने स्मगलिंग केस में सफियान को एक बार पकड़ा भी, लेकिन तब उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिला जिसमें गवाही देनी थी। अदालत में पहुंचने से पहले सफियान के आदमियों ने उसको मार डाला था। ऐसे सफियान सपारी अजहर के हाथों से बच निकला। लेकिन ज़रा पता है सबसे हैरानी वाली बात क्या है इस केस में? अब के ज़फ़र बोल रहा था, अजहर को वो हीरे मिल चुके थे, लेकिन इसने वो हीरे अपनी टीम और CID ऑफिसर्स में से किसी को ना ही दिखाई और ना ही उनके हवाले किए थे, बल्कि उनको अपने पास रखा, जिस वजह से सफियान सपारी अजहर के वैसे ही राजदारी से पीछे पड़ा। जैसे उसने कुछ नहीं बताया तो वो क्यों सरेआम को तमाशा करता? मेरा ख्याल है इसकी नीयत बदल गई होगी, तभी तो उसने हीरे सबसे छुपा दिए। सना ने रूम में आते मुंह में केला ठूसते बड़बड़ाया। आते ही घर वालों को तंग कर दिया। अब उन्होंने सनान को गुस्से से देखा था जो आराम से सुबह पर विराजमान हुआ था। देखो उमर, मैंने किसी को तंग नहीं किया। मेरी बहन ने प्यार से मुझे प्लेट में दिया इसलिए खा रहा हूँ। खैर मैं बुरा नहीं मानता, मेरी बहन तुम लोफरों के लिए भी लाती होगी। सनान ने भी हिसाब बराबर किया, जबकि वो सब गुस्से से उसको घूरने लगे थे। ज़फ़र, इस केस में कुछ तो है। हमारे सब खबरें इकट्ठे करो, किसी दिन मैं खुद उनसे बात करूँगा। ज़रा ने कुछ सोचते कहा। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र कुछ कहता ज़रा को जनाब के सलाम पर सबने डोर की तरफ देखा। वालेकुम सलाम। सबने एक साथ जवाब पास किया, जबकि ज़रा ने खुशी से अपनी बीवी की तरफ देखा जो हाथ में ट्रे लिए उन तक आई थी। वो आराम से ट्रे टेबल पर रख गई। भाभी इसकी क्या ज़रूरत थी? सबने जल्दी से कहा, जबकि बाकी सबने भी देखा। क्यों आप काफ़ी दिन बाद यहाँ आई तो इतना तो बनता है। जनाब ने बहुत खुशी से हल्के फुल्के से अंदाज में बात की। जनाब पता है ये अभी मुझे भी बोल रहे हैं कि मैं नीचे से प्लेट क्यों लाया। सनान ने भी मौका हाथ से न जाने दिया। शिकायत देखो किससे कर रहा है। ज़रा को हंसी आई थी, जबकि बाकी सब मुंह खोले सनान को घूर रहे थे। कोई बात नहीं भाई, आप में और इनमें फ़र्क है। आप मेरे भाई की हैसियत से यहाँ पर हैं तो बात घर वाली हुई ना, और ये सब ज़रा के दोस्त की हैसियत से आए हैं, तो इस लिहाज से ये मेहमान हुए। जनाब ने मुस्कुराते सनान को आंख के इशारे से चुप रहने को कहा तो वो मुस्कुराते जोर से हंसा। ये क्यों मुस्कुरा रहा था? जबकि अब की ज़रा हैरानी से जनाब को देख रहा। चलें आप सब अपनी बातें करें, मुझे अभी बहुत से काम है। जनाब इजाज़त लेती वहाँ से गई। ज़रा एक मिनट, मैं अभी आता हूँ, फिर चलते हैं। ज़रा एकदम से कहते रूम से बाहर गया तो सब सनान की तरफ मुतवज्जो हुए, जो बहुत आराम से बैठा खाने के साथ गेम भी फ़ोन पर खेल रहा था। बेगम इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा सा अपने शोहर को भी टाइम दे दो। अभी सनाब चेंजिंग रूम में जाने वाली थी जब ज़रा ने उसको बस से पकड़ते खुद के करीब किया। मतलब सनाब तो उसके शोहर को टाइम देने वाली बात पर ही शौक हो हुई खड़ी थी, जबकि उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो उसकी बाहों में आ चुकी थी। मतलब ये वो कहते उसको साथ लगाए ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया। अब कुछ यूँ था कि जनाब आईने के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और ज़रा उसके पीछे खड़ा उसको अपने साथ में लिए हुए था। जानता हूँ अभी तुम्हें तैयार होना है, लेकिन मैं कुछ दिन से तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन ठीक वक्त का इंतजार कर रहा था। ज़रा उसकी उड़ती गिरती पलकें देख सरगोशी की तरह कह रहा था, जनाब आज का दिन वैसे ही है जैसे शादी का दिन था। पिछली बार जो हमारे दरमियान हुआ, इस बार वैसा कुछ नहीं चाहता। तुम्हें याद होगा जब हम फार्म हाउस गए थे, आपके मुकाबले ने कहते उसके चेहरे को अपनी तरफ किया, अपनी तरफ यूँ कह के अब जनाब उसके सामने उसके साल में क्या थी। हम उस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? जनाब ने झुकी नज़रों से सवाल किया। इसलिए कि मैं चाहता हूँ मुकाबले ने कहते अब की बार उसके चेहरे को ऊपर किया। जनाब ने पल्स की भी उठाई और मुकाबले की आंखों में देखा। जनाब मैं उस रात को वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी नई ज़िंदगी आज की खूबसूरत रात से शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये रात हमारी बहुत खास होगी। जनाब मोहम्मद में गिरफ्त सा कह रहा था और जनाब तरफ जल्दी से सब कुछ सुन रही थी। तुम्हें पता है आपके ज़रा ने उसका चेहरा आईने के सामने किया और अपना चेहरा उसके शाने पर टिकाया, क्योंकि वो दोनों उस पर शीशे में खुद को देख रहे थे। रिसेप्शन के बाद हम घर नहीं आ रहे, आज की रात बहुत खास होगी। ज़रा उसके गर्दन को अपने होंठ रखे हंसाने लगा। ये क्या हो रहा है? जनाब को घबराहट हो रही थी, दिल की धड़कनें अपनी ही रफ्तार पकड़ चुकी थी। नहीं, इस बार मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना। जनाब को अचानक से खौफ ने गिरा। ज़रा इससे पहले ज़रा आगे कुछ कहते सनान की बात पर तेज़ी से जनाब से दूंगा, जबकि ये देख जनाब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भरी। बहुत हंसी आ रही है बेगम। ज़रा उसकी हंसी देख समझी था, पर कोई बात नहीं बेगम, हंस लो, पर आज रात की
آج کی رات ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اسرار کہتے اس کے قریب آیا اور ماتھے پر بوسہ لیتے روم سے گیا۔ یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ جناب پریشان ہوئی، لیکن آج رات میں اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانے والی۔ جناب ٹہلتے سوچنے لگی کہ ایسا کیا کرے جس سے اس کو اس کے ساتھ جانا نہ پڑے، لیکن آگے کیا لکھا ہوا تھا اب اس کو کیا پتا تھا۔ جناب تم یہاں ہو، میں کب سے اوپر تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ آبش اس کو لون میں بیٹھے دیکھ قریب آئی تھی، جبکہ باقی سب تیار ہو کر جا چکے تھے اور لڑکیاں سب پہلے ہی پارلر کے لیے چلی گئی تھیں۔ وہ جناب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن جناب نے انکار کر دیا، جس وجہ سے آبش نے پارلر والی کو یہاں ہی ایپل کو کہہ کر مروا لیا۔ کیوں نہ کہ فنکشن شروع ہونے والا تھا، اوپر سے مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کیا ہوا چاچی؟ وہ کہتی اٹھی تھی۔ جناب بچے آج تمہارا فنکشن ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اسرار بھی آنے والا ہوگا۔ میں نے سب سامان تمہارے روم میں رکھوا دیا ہے، جو بھی پہننا ہو پہن لینا، اور جولی بھی رکھ دی ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں ابھی آپا کے ساتھ جا رہی ہوں، بنا کہ زیادہ آپا کی کال بار بار آ رہی ہے، مہمانوں کو بھی وہاں دیکھنا ہوگا، تو تم جاؤ اور تیار ہو جاؤ، میں چلتی ہوں۔ آبش اس کو کہتے گاڑی کی طرف گئی، جہاں پر ایپک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گڈ بائے جناب۔ ایپک اس کو اندر جاتے دیکھ مسکراتے دل سے بولی کہ اپنی چال چل چکی تھی۔ جناب واش روم سے شاور لیتے بات میں ٹاول لیتی روم میں داخل ہوئی۔ وہ آرام سے جلدی سے سب چیزوں کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی جناب نے بیگ میں سے ڈریس نکالی تو شوق سے ہوئی، جبکہ چہرہ سفید پڑا۔ یہ اسکرٹ تیزی سے یہ الفاظ منہ سے برآمد ہوئے، آبش چاچی یہ رکھ کر گئی ہیں میرے لیے۔ وہ بھی حیران تھی، لیکن میں نے تو کوئی اور پسند کیا تھا آپ کے کہتے اس نے اس کو اسکرٹ بیڈ پر پھینک دی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ پریشان سے ادھر ٹہلنے لگی، ناخن چبانے لگی۔ اب یہ کر سکتی ہوں۔ جناب نے کچھ سوچتی وارڈروب کی طرف گئی، اپنے پہننے کے لیے ڈریسز میں سے کوئی مناسب سا لباس لیتی چینج کرنے گئی۔ نہیں جناب، اس کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا ریسیپشن ہے۔ وہ اپنا سادہ سا لباس دیکھتی جھنجھلائی۔ جناب ابھی وہ ویسی پریشان سی کھڑی تھی جب مسز یاسمین اس کے پاس آئی۔ آپ ابھی تیار نہیں ہوئی؟ وہ اس کو سادہ سا لباس میں بکھرے بالوں میں دیکھ حیران ہوئی۔ مسز یاسمین ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ پریشان سے ان کی طرف لپکی۔ آپ فکر نہیں کرو، میں مسز آبش کو کال کرتی ہوں۔ وہ کہتے نیچے گئی تو جناب کو خود پر غصہ آیا۔ کاش اس دن اسرار کے کہنے پر اپنے لیے خود سے کچھ لے لیتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ جناب نے غصے سے پھر سے وہ اسکرٹ دیکھی۔ اچھا وہ آپ آ گئی مسز یاسمین، بات ہوئی آبش چاچی سے؟ وہ چینجنگ روم سے ہی بولتی روم میں آتی تو سامنے دیکھ ٹھٹکی۔ اسرار وہ اس کو تیار کھڑا دیکھ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا بیگم، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو اپنے شوہر کو کال کرنی تھی، نہ کہ آبش چاچی کو۔ قابل نے کہتے اس کے قریب آیا تو جناب نے حیرانی سے اس کو گھورا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آج کا دن صرف ہمارا ہے، کتنی بار بولوں؟ وہ کہتے اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی طرف گیا، جہاں پر وہ ابھی کچھ دیر پہلے شاپنگ بیگ رکھ کر ہٹا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے یہ اپنے لیے پسند کیا تھا؟ جیسے اسرار نے اسکرٹ دیکھی چہرہ اسپاٹ ہوا، جبکہ الفاظ میں بھی روک تھا۔ نہیں، ہم اس بات پر بعد میں بات کریں گے، ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کے گال تھپاتے بولا۔ یہ تم؟ جناب بیگ کی طرف اشارہ کرتے چپ ہوئی۔ جناب اگر تم اپنے لیے کوئی اور ڈریس بھی لے آتی تو آج کے دن تم نے میرے لائے ہی کپڑے پہنے تھے۔ یہ میں نے خود تمہارے لیے بننا دیا ہوا تھا، اس لیے ابھی ساتھ لایا ہوں، اور یہ باقی کی شاپنگ میں نے اس دن تمہارے لیے کی جب یہ ڈریس بنوانے کے لیے دی۔ بیگم اگر سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو آپ تیار ہو سکتی ہیں۔ دادا جان کی کتنی کال آ چکی ہیں۔ اب کے اسرار کہتے اس کے بالوں کو ہونٹوں سے پھونک مارتے پیچھے کرنے لگا۔ آپ جائیں گے تو ہی تیار ہوں گی۔ جناب اس کو ایسے کھلتے دیکھ حسین سے بولی تو مقابل میں کہ جیب پر جاننے پر مسکرا لیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے روم کا ڈور بند کرتا باہر گیا تو جناب تیار ہونے گئی۔ ہاں بس آ رہے ہیں، اسرار ظفر کا فون پک کرتے بولا، جبکہ وہ آدھے گھنٹے سے نیچے بیٹھا جناب کا انتظار کر رہا تھا۔ میری غلطی ہے جو میں نیچے آ گیا، وہ اسے کہتے اوپر گیا۔ جیسے اسرار روم میں داخل ہوا، منہ کھولے جناب کو دیکھنے لگا، جو اس پر کسی پری کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ لائٹ گرے کلر کے گون میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اسرار اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ منہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ از ویری بیوٹیفل، وہ خوش انداز میں کہتا اس کے قریب آیا تھا۔ جناب نے کاجل سے سجی اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا تھا۔ مقابل نے محبت سے 5 نظروں سے اپنے محبوب کو دیکھا تھا۔ عرض کیا ہے؟ اسرار اس کے قریب ہوتے اس کو باہوں کے سہارے میں لیتے بولا تو جناب نے درختے ہوئے سے اس کو دیکھا تھا۔ محبت لکھنے میں 4 لفظ میم ہا بے تا، بیاں کروں تو کل کائنات ہو تم۔ وہ گمبھیر سے بات میں کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیچھے ہوا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا کہیں جانے کو، کیا خیال ہے بیگم؟ ریسیپشن پر جانے کے بجائے کہیں اور بھاگ چلے۔ اسرار نے کہتے دونوں بازو اس کے شانوں پر ٹکائے، گردن کے پیچھے ہاتھ باندھے۔ وہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب نے دل کو قابو کرتے مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ چلو کوئی بات نہیں، رات میں صرف تم اور میں۔ ذرا یہ معنی خیز لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ کو اپنی بازو میں ڈالے چلنے لگا تو جناب نے اس کی بات کو سنتے گھبراتے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ ایپک تمہیں یقین ہے نا کہ وہ یہاں اس کلب میں آئے گی؟ زیادہ بیگم جب سے ایپک آئی تھی تب سے اس سے 10 بار ایک ہی بات پوچھ رہی تھی۔ جی آنٹی کو اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی اور لباس ہے ہی نہیں۔ ایپک نے ایسے یقین سے کہا جیسے یہ صدیوں سے اس کے ساتھ رہتی ہو۔ آنٹی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو؟ اب کہ ایپک کا دماغ دوسری طرف گیا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کس کے ساتھ آ رہی ہے۔ دعا کرو وہ اکیلی آئے، اور یہ اسرار پتہ نہیں کہاں ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ تم پہلے ہی فنکشن میں آ جانا۔ سادہ بیگم ادھر ادھر دیکھتی کہتی عثمان افغانی کی طرف گئی۔ لو
ज़ादा बेगम को रहा का बेटा। चलो। ज़ादा बेगम ने आते ही ज़रार को फ़ोन करने का कहा, उस्मान अफगानी को। तभी इत्तेफाक से ज़रार व जन्नाब फोटो में दाखिल हुए तो हर किसी ने उन दोनों को देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़रार के साथ है। फिर दोनों को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देख आग बबूला हुई, जबकि उस पर उसका बस नहीं चल रहा था कि जन्नाब को ज़रा से दूर कर दे। होटल में मौजूद हर इंसान की नज़र इस जोड़ी पर ठहरी हुई थी। वो दोनों फूलों की पत्तियों पर चलते स्टेज पर गए थे, जबकि मीडिया भी कैमरे में इनकी पिक्स कैच कर रहा था। है पर तुमने तो कहा था कि ये लड़की आंटी, मैं उसको मार दूंगी, वो गुस्से से कहती वहाँ से बाहर की तरफ गई। तो ज़्यादा बेगम बड़ी जरूरत पैकी सी मुस्कुराहट से जाते कुछ मेहमानों की तरफ गई। भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। फिर से शांति के साथ जन्नाब ज़रार के पास आई थी, जबकि ज़रार ने वापस से जन्नाब को देखा था। आखिर बीवी किसकी है? अब ज़रार ने कहते जन्नाब के सामने से अपना कंधा मिस किया तो जन्नाब ने चुनकर उसकी तरफ देखा, जबकि जल्दी से चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जी हमें पता है आपकी है। शांति दोनों की पिक्स फ़ोन में लेती अपनी मम्मा और पापा को भेजने लगी। फिरोज़े फ़रहीन कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। आबिश फिरोज़े के सर पर खड़ी हुई तो उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वो मम्मा फ़रहीन अभी यहाँ नहीं है। वो उसकी हील वाली शूज़ ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो पार्लर से सीधी शॉपिंग मॉल चली गई कि वो खुद आ जाएगी। फिरोज़े अपनी मामा को गुस्से से घूरता देख डरते बोली थी, उसको फ़ोन करो, पता करो कहाँ है, जल्दी से आप आए। आबिश उसको गुस्से से कहती वहाँ से गई तो फिरोज़े ने फ़ोन मिलाया। सॉरी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। फ़रहीन जल्दी में मॉल से निकलने के चक्कर में किसी से टकराई थी। कोई बात नहीं, मुकाबले कहते जैसे ही सामने देखा तो वो मासूम सी लड़की उसके दिल में घर कर गई। शुक्रिया ये आपकी। फ़रहीन उसका बैग उसको थमाते जल्दी से मॉल से बाहर गई। बिना फिरोज़े की कॉल की कितनी ही कॉल आ चुकी थी। जनाब कही तुम बोर तो नहीं हो रहे? ज़रा उसके साथ चलते पार्लर में सबसे मुलाकात करा था। नहीं, जनाब ने मुस्कुराते जवाब पास किया, जबकि चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो थक चुकी है। बेगम पहले भी बोल चुका हूँ, तुम मुझे बता सकती हो, आखिर तुम्हारा शो हो। अगर थक गई हो तो हम अभी यहाँ से गायब हो सकते हैं। अब ज़रा ने मायने खींच लगी में कहती है, साथ आंख भी दबाई। जनाब उसकी आंखों में कम देखा करो, लगता है इसके पास कुछ है जो तुम्हें खुश होने लगता है। जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ, जनाब ने दिल में सोचा, जल्दी निगाहें दूसरी तरफ फेरी। जीजू अगर आपकी इजाज़त से थोड़ी देर अपनी बहन को अपने साथ ले जाऊँ, शांति ने मासूमी से भरे लहजे में कहा तो ज़रार ने पहले जनाब फिर उसकी तरफ देखा। ठीक है ले जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी बीवी मेरे पास होनी चाहिए। अब के ज़रार ने शांति के करीब होते आस्तीन से कहा, जबकि जनाब चुन गई, कि उसको कुछ भी नहीं सुना था। समझ गई। शांति खुशी से मुस्कुराते जनाब का हाथ पकड़ते फिरोज़े लोगों की तरफ गई। क्या कह रहा था वो? जैसे ही जनाब शांति के साथ गई, जनाब ने उसके चेहरे को देख पूछा। कुछ नहीं आप ही। जीजू बोल रहे थे कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। शांति ने आराम से कहते अपनी यूनिवर्सिटी की कुछ न्यू फ्रेंड्स को बुलाया था जनाब से मिलाने के लिए। एक्सक्यूज़ मी जनाब, चलो मैं तुम्हें एक खास इंसान से मिलवाता हूँ। जनाब उसके हाथ को पकड़ते एक टेबल की तरफ गया। उनसे मिलो, ये मेरा दोस्त अजान अफगानी है, हम साथ में एक ही स्कूल में थे। ज़फ़र और सनान का भी दोस्त है, और ये भाभी इनकी वाइफ ज़रार। ज़रार ने मुस्कुराते कहा तो जनाब खुशी से ज़रार से मिली। माशाल्लाह ज़रार भाई, आपकी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। ज़रार ने दिल से खुश होते तारीफ़ की। आप भी बहुत अच्छी हैं। जनाब ने भी दो जुमले तारीफ़ के अदा किए। वैसे जनाब भाभी, मैं आपके शोर से थोड़ा सा नाराज़ हूँ। इसने मुझे शादी पर नहीं बुलाया, लेकिन आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा, बस इसलिए इसको माफ़ कर रहा हूँ। और अगर तो सच में चाहता है कि मैं दिल में से तुझे माफ़ कर दूँ ज़रा, तो कभी भाभी को हमारे घर डिनर पर लेकर आना होगा। अजान ने संजीदगी से कहते ज़रार को देखा, जो मुस्कुराते जनाब को देखने लगा। बस इतनी सी बात यार, ज़रूर आऊँगा अगर तेरी भाभी को कोई इतराज़ ना हुआ। ज़रार ने यह कि फैसला जनाब पर छोड़ा। जनाब जल्दी से बताओ, आओगी ना भाई के साथ? आपके ज़रार बोली तो जनाब ने सबकी तरफ देखा। हाँ ज़रूर आऊँगी। जनाब ने जैसे ही कहा, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ठीक है फिर भाभी, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अजान ज़रार के चेहरे पर हाथ रखते बोला, वैसे जनाब आपकी शादी ज़रार भाई से पसंद की हुई है? जैसे ज़रार ने देखा ज़रार और अजान आपस में बात करने लगे तो जनाब को मुखातिब नहीं थी। जनाब ने वैसी हसीन आवाज़ में बोली, आपकी साथ ही सवाल किया हमारी लव आपके साथ ही सवाल किया हमारी लव। ज़राब ने मोहब्बत से सामने देखा था, जबकि चेहरे से खुशी चलक भी रही थी। एक बात कहूँ, ज़राब हिचकिचाते जनाब के करीब हुई थी। जनाब ने हैरानी से उसको देखा, पर आप दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि शादी अरेंज हुई है। ज़राब ने ज़रार को इतना खुश देख हर्षा जाहिर किया। आई नो, सब वैसे ही कहते हैं। जनाब मुस्कुराते आराम से बोली, वैसे आप ज़रार को कब से जानती हैं? आपके जनाब ने सवाल किया। मैं 5 साल थे जब हमारी शादी हुई थी। ज़रार भाई सब दोस्तों के साथ हमारी शादी पर आए थे, तब मिली थी उनसे। अजान हमेशा अपने दोस्तों के कॉलेज के स्कूल की बातें करते रहते हैं, इसलिए अच्छे से जानने लगी ज़रार भाई लोगों को। ज़रार ने खुशी से सब कुछ बताया, लेकिन ज़रार ने तो कभी भी एक बार भी खुद से मेरे सामने अपने किसी दोस्त की कोई बात नहीं की। जनाब को सुन बुरा लगा तो अब की बार घूरते सामने देखा। जनाब चलो जल्दी से अपना नंबर दो। ज़रार अपना फ़ोन खोले बोली तो जनाब ने मुस्कुराते उसका नंबर नोट करवाया। माशाल्लाह, ऊपर वाला बुरी नज़र से बचाए। ज़रार जनाब एक साथ खड़े तस्वीरें बना रहे थे जब ज़्यादा बेग ने उन दोनों की नज़र उतारते प्यार से कहा, आज़र शमीर फिरोज़े सब ने शौक से उनकी तरफ देखा, जबकि ज़रार भी चौंका, लेकिन माँ थी उसका प्यार देख ज़रार उनके साथ लगा। बेटा
अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी बहू को अपने साथ ले जाऊँ, मुझे उसको अपने दोस्तों से मिलवाना है। उनको भी तो पता चला कि मेरी बहू देखने में ही नहीं दिल से भी बहुत अच्छी है। ज़्यादा बेगम ने अब के जनाब के चेहरे पर हाथ रखते कहा तो जनाब हल्की सी मुस्कुराहट से इधर उधर देखने लगी, जबकि दिल से वो भी उनका ये अंदाज़ देख हैरान थी। मामा ये भी पूछने वाली बात है, आपकी बहू है, जहाँ मर्जी ले जाओ। ज़रा ने कहते जनाब का हाथ छोड़ा तो ज़्यादा बेगम उसको लेती वहाँ से गई तो ज़रा अपने दोस्तों की तरफ गया। भाई आप कहाँ रह गए थे? शांति रूहान के गले लगती साथी तेज़ी से बोले। कहने की कितनी ही बार जनाब पूछ चुके थे, सॉरी थोड़ी सी देर हो गई, मैं ज़रा असल में ये गिफ्ट लेने चला गया, वो भी जनाब और ज़रा के लिए। शादी पर मैं यहाँ नहीं था तो बस इसलिए। रूहान इधर उधर देखते बोला, जबकि नजरें जनाब को ढूंढ रही थी। भाई जनाब आपकी ज़्यादा आंटी के साथ थोड़ी सी बिजी हैं, वो अभी आ जाएंगी, पर तब तक आप ज़रा जी से तो मिलो। शानदार खुशी से कहती उसके हाथ में हाथ डाले ज़रा की तरफ गई। जनाब क्या हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं? जैसे जनाब ज़्यादा बेगम के दोस्त सब दोस्तों से मिलकर फारग हुई तो ज़्यादा बेगम ने चालाकी से जनाब के सामने नाटक शुरू किया। जी आंटी क्यों नहीं? जनाब कहते उनके साथ थोड़े से बाहर वाली साइड पर रही। बेटा मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात कहाँ से शुरू करो, लेकिन खैर अब माफ़ी तो मांगनी है ना। वो मासूम से चेहरा बनाती बोली तो जनाब ने उठते उनको देखा। मैं समझी नहीं आंटी किस चीज़ की माफ़ी? जनाब ने आस्तीन से पूछा, जबकि चेहरे पर हैरानगी थी। जब तुम शुरू में यहाँ आई थी तो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ भी तुम्हारे बारे में मालूम नहीं था। जैसे जनाब को नहीं पता था वो पर मासूम से मुँह बनाती जनाब को शौक कर गई, जबकि जनाब ने कुछ ना बोलना ही वजह समझा था कि वो पहले उनकी बात का मतलब समझ आए। लेकिन फिर जब तुम्हारे दादा जान का इंतकाल हुआ तो तुम्हारी फैमिली का पता चला कि वो पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, तो वो सदमा लगा। वैसे ही ज़रार को लगा था जब वो वहाँ गया था, और पापा ने उसको बताया कि वो इसीलिए जल्दी जल्दी शादी करना चाहते थे। जैसे दादा ने यह कहा जनाब ने कटी आंखों से उनको देखा था। लेकिन अब कोई मसला नहीं, पहले ज़रा तुम्हें अच्छी लड़की नहीं समझता था, पर जब से उसको पता चला तुम्हारे बाबा तुम्हारे बारे में, तब से वो कोशिश करने लगा कि खुद भी इस रिश्ते को समझो, और इसलिए तो उसने तलाक की बात नहीं की तुमसे, वरना जब शादी की तो उसने पहले ही सोच लिया था कि वो तुम्हें छोड़ देगा, पर नहीं, फिर इसने तुम्हें भी मौका देना बेहतर समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतना सास वाला और हमदर्द है। दादा लेकिन जनाब के बदलते चेहरे के रंग देख बहुत खुश हुई थी, मतलब उसको मुझसे वहाँ दिल भी कुछ बोलना नहीं चाहता था। इस बार लगता है काम हो गया। जैसे ज़्यादा बेगम ने देखा कि वो सोच में पड़ी, दिल में खुशी हुई। चल बेटा अंदर चलते हैं, वो जनाब को कहती अंदर गई तो जनाब आंसू को अपने अंदर उतारते उनके पीछे ही गई। सब कुछ झूठ था, वो मुझसे वो इस कदर टूट चुकी थी कि उसको इस पर खुद पर भी हैरानगी हो रही थी, लेकिन उन्होंने की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मोहब्बत नहीं करता। जैसे जनाब को ज़्यादा बेगम की बात हमदर्दी वाली याद आई, वो अपने होंठों पर हाथ रख अपने सिस्टर को दबाने की कोशिश करने लगी। वो होटल के वाशरूम में खड़ी अपनी किस्मत को घुस रही थी। चाचू को उसकी हमदर्दी प्यार जनाब को इस कदर दर्द हो रहा था, वो अनजान सी बनी खुद से उलझ रही थी। क्या हो गया जनाब? वो उसके आंसू साफ करती खुद को आईने में देखने लगी, जबकि जल्दी से चेहरे को टिश्यू से साफ करने लगी। तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तू कौन सा? जनाब कहते ज़बान भी खामोश हुई, जबकि अल्फाज भी कहीं गुम होते कि कहीं मुझे। जैसे ही अपनी हालत देखी जल्दी से टिश्यू से अपने आंसू को साफ करती चेहरे को रगड़ने लगी। नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, मैं कभी भी ऐसे इंसान को नहीं चाह सकती, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो उस पर अपनी कैफे समझने से कासिर हुई खड़ी थी। अगर इस पर कुछ याद था तो ज़्यादा बेगम की कही बातें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद से कहती अपनी लाल आंखों को साफ करते बाहर गई। बाजी आप कहाँ थी? फरहीन उसको देखते ही करीब आई थी, जबकि उसका हाथ पकड़ती आगे की तरफ बढ़ी थी। जनाब भी अपना घूम उठाती उसके कदम से कदम मिलाने लगी। फरहीन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जबकि कहीं कहीं कोनों में हल्की सी मध्यम सी लाइट से हॉल को दिलकश सा बना रहे थे। फरहीन जैसे जनाब हॉल को देखती पलटी, फरहीन उसका हाथ छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हुई। तभी एक लाइट रोशनी से भरपूर जनाब पर आ ठहरी। जनाब इतनी तेज रोशनी देख अपने चेहरे के आगे हाथ करने लगी, जबकि उसको इस रोशनी की वजह से कुछ भी और नजर नहीं आ रहा था। अचानक से हॉल में ताले के आवाज़ उसके कानों की आवाज़ से टकराई, जबकि किसी ने अचानक से उसके हाथ को पकड़ते अपनी तरफ खींचा तो जनाब फूल की मानो उसकी तरफ लगी, जबकि अपनी समय आंखों को पूरा खोलते सामने खड़ी हस्ती को देखने लगी। जनाब आंखों से पार नजर से उसको देख रहा था। क्या कहा था ना बेगम, आज की रात बहुत खास होगी हम दोनों के लिए। जरा ने अब के जनाब के कान में सरगोशी की तो जनाब ने लस्ते उसको तका था। अभी तो याद शुरू हुई है, मुकाबले ने कहते इशारा दिया तो तभी म्यूजिक बजा। जनाब ने जनाब के हाथों को अपने निशानों पर रखा, जबकि खुद के हाथों को उसके कमरे में डाला और आसा सून की धुन पर जनाब को अपनी मोहब्बत के सील में कहीं कैद कर रहा था। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ गाते ही जनाब को एक हाथ से पकड़ते खुद से दूर किया था। जैसे जरा ने गाने को गाते अल्फाज अदा किया, जनाब ने कोई अंदाज में उसको देखा, जबकि जरा ने तू जो मिला कहते ही जनाब को खुद के सहारे में लिया तो दोनों ही उस पर कहीं गुम हुए। जरा जनाब के कमरे में हाथ डाले अपने साथ साथ डांस करते ही अल्फाज अदा कर रहा था, जबकि सुन ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया था। जरा ने जनाब को दाहिने हाथ से पकड़ते घुमाया। जनाब उसके सर में गुमसी होती जा रही थी, जबकि म्यूजिक भी साथ ही बज रहा था। आपके कहते मुकाबले ने उसके दिल को बेहद करीब किया, जबकि वो दोनों इस पर ऐसे एक दूसरे में खोए हुए थे जैसे और कोई भी पास ना हो। जरा ने दिल पर हाथ रखकर जनाब को देखा था, जिसकी आंखें उस पर कोई और ही मंजर पेश कर रही थी। लेकिन अगर जनाब इस पर कुछ महसूस करती तो वो जरा की मोहब्बत को समझ पाती, लेकिन शायद किस्मत को भी कुछ और ही खेल खेलना था।
ज़रा ने कहते जनाब को एक बार फिर घुमाया तो जनाब उस पर कहीं और ही गुम हो गई थी। जब से वो ज़रा से मिली थी तब से लेकर अब तक की हर बात वो किसी फिल्म के सीन की तरह उसके दिमाग में चल रही थी। मोहब्बत नहीं करता मुझसे, सिर्फ हमदर्दी है। अचानक से दादा बेगम की कई बार याद आई थी, जनाब की आंखों में अक्स भर रही थी। ज़रा ने कहते जनाब को हाथों की मदद से ऊपर उठाया था, यूँ कि वो इस पर उसके शाने पर हाथ रखे हुए थी और ज़रा ऊपर से उसको आस्ता आस्ता लिए घूम रहा था। ज़रा आपके आस उसको आस्ता आस्ता नीचे कर रहा था। जैसे ज़रा ने उसको नीचे किया, ज़रा की खुशी एक पल में ही गायब हुई। जनाब के आंसू ज़रा को होश में लाए थे, जबकि पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ गूंज उठी थी। जनाब तेज़ी से वहाँ से गई थी, बिना कि हॉल की सब लाइट्स ऑन हो चुकी थी। वो रो रही थी। ज़रा का दिल बेचैन हुआ, जबकि अब उसको इधर उधर देखने लगा। मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती, जनाब समझ कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। ऐसा तो नहीं था कि उसको मोहब्बत का मतलब नहीं पता था, या ये कि वो इस एहसास के बारे में जानती नहीं थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि वो पहले कभी अपने दर्द में नहीं पड़ी थी जब जैसे अब हो रहा था। वो जितनी कोशिश करती कि वो ना रोए, आंसू ज़ख्मों की तरह उसको हर बार याद करवा देते थे। वो पूल के पास खड़ी अपनी किस्मत पर रो रही थी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों ज़रा हमदर्दी की वजह से वो मेरे साथ इतना अच्छा रहता है। जनाब का दिमाग कितने ही सवालों में गिरा हुआ था, जबकि दिल कह रहा था कि जो उसकी आंखों में है वो मोहब्बत है। लेकिन फिर अचानक से उसको इसकी पहले की आदतें याद आ जाती हैं। वो चाहकर भी किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं उसको मार दूंगी, मैं उसको अपना ज़रा कभी नहीं दूंगी। एपिक नशे की हालत में जनाब को पूल के पास खड़ी देख चुन्नी से अपनी ही धुन में बोली, जबकि आस्ता आस्ता उसकी तरफ बढ़ी। जनाब को देखा, ज़रा परेशान सा हर जगह उसको ढूंढ रहा था। ज़रा ने सनान को पुकारा तो वो उसकी तरफ सवाल नजर से देखने लगी। जनाब कहाँ है? ज़रा ने परेशान सा होकर सवाल किया। पता नहीं, लेकिन क्या हुआ? सभी उसको ढूंढ रहे हैं। सनान को हैरान हुई। और कौन ढूंढ रहा है? ज़रा ने चुनकर पूछा। रोहान भी सबसे पूछ रहा है। सनान ने सामने उसकी तरफ इशारा करते कहा तो ज़रा ने उसकी तरफ देखा और तेज़ी से चलते उसके पास गया। ज़रा जनाब कहाँ है? जैसे ही रोहान ने देखा कि ज़रा उसके करीब आया तो फिक्र से पूछा, तुम्हें क्या काम है? ज़रा ने बेबाक से उसके सवाल को इग्नोर करते तैयार किया। जब से मिली नहीं। रोहान ने फ़ोन मिलाते कान से लगाया। हेलो जनाब। जैसे ज़रा ने सुना, तेज़ी से रोहान के हाथ से फ़ोन किया। रोहान, मैं पूल के पास हूँ, वहाँ आ जाओ। इससे पहले ज़रा कुछ बोलता जनाब ने कहते फ़ोन बंद किया तो ज़रा भी गुस्से से फ़ोन रोहान को देते वहाँ से वॉकआउट कर गया। जबकि रोहान शौक सा कभी ज़रा को ज़्यादा देखता तो कभी बंद फ़ोन को देखता। जब मैंने फ़ोन किया तो उठाया नहीं, और उसके ज़रा से फ़ोन करने पर मैडम ने फ़ोन भी उठाया और बता भी दिया कि कहाँ पर है। ज़रा गुस्से से मेरे डग भरता होठों से बाहर निकला। थैंक यू। किस लिए? जैसे ही आज़म ने खुश होते कहा, शान से अनजान बनते पूछा। तुम्हें पता है? वो आराम से कहते उसके साथ चला। अच्छा जी। शान से अच्छा को लंबा खींचते बोली तो आज़म ने मुस्कुराते उसको देखा। वैसे आज तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। शान ने चलते ही खुशी से कहा। अच्छा, मुझे पता है तुम खुश क्यों हो? आज़म ने ऐसे कहा जैसे सच में पता। शान और आज़र के दरमियान अब पहले से सब कुछ बेहतर हो चुका था। जब से शान आज़र की सारी बनी जाने लगी, दोनों के दरमियान दोस्ती होने लगी। बस इसलिए आज़र आज जो ने जिन्ना बाबा के साथ डांस किया, कमाल ही हो गया। वैसे मेरी आप ही को डांस आता नहीं है, लेकिन आज वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे एक साथ। उनको देख कर लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के सिवा सब कुछ भूल गई थी। शांति उनका डांस याद करते बोली, उफ, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। ज़रा जीजू को कितना चाहते हैं उनके चेहरे से पता चलता है। उनको किसी की नज़र न लगे। शांति दिल से बहुत खुश थी। एक बार मेरा हाथ थाम लो, फिर देखना मैं भी तुम्हें ऐसे ही जाऊँगा। आदर एकदम से उसके रास्ते में हाल हुआ तो शांति ने घबराते इधर उधर देखा। नहीं छोड़ूंगी। आप गुस्से से कहते जनाब के पीछे खड़ी हुई, जबकि जनाब अपने ही ख्यालों में खड़ी हुई थी जब याकूब ने एकदम से उसको धक्का दिया था। जनाब फट से पूल के अंदर गिरी। मर जाओ। जनाब ऐप गुस्से से देखती गुस्से को गई। जनाब पानी के अंदर हाथ मारते डूबने लगी, जबकि मुझसे हाथ मार रही थी और ऐप सामने खड़ी उसको डूबता हुआ देखने लगी। जनाब जैसे ज़रा ने देखा, पूल के अंदर जनाब तकरीबन डूब ही चुकी थी। जब ज़रा ने पानी में छलांग लगाई, उसी तेजी से जनाब को पानी में से अपने हाथों में उठाते बाहर आया, जबकि अब उसको नीचे डाले उसका चेहरा ऊपर उठाया था। जनाब प्लीज़ अपनी आंख खोलो। ज़रा का दिल खौफ से ज़ोर से धड़क रहा था, जबकि मुझसे उसकी सांसें सुनने की कोशिश कर रहा था। एपिक डॉक्टर का कॉल करो जल्दी से। ज़रा पूरी तरह चेका था। जैसे ही एपिक ने ज़रा की आवाज़ सुनी, एकदम नशे से होश में आई थी। अभी शांति भी डरते सामने देखा था, जबकि आज़र भी शॉक्ड हुआ था। ये सांस भी नहीं ले रही। ज़रा को जोर ज़्यादा, जबकि बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से झुका था और जनाब को सांस दे दी। एपिक ये देख गुस्से में आई थी, लेकिन अब वो भी क्या कर सकते थे। लेकिन इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ज़रा ऐसे इसके सामने जनाब प्लीज़ आंखें खोलो। ज़रा एक बार फिर झुका था, तब भी जनाब की सांस में सांस आई थी, जबकि उसके मुँह से पानी भी निकला। जनाब जैसे ही ज़रा ने उसकी आंखें खुलती देखी, उसके दिल से अपने अंदर भेजा। थैंक गॉड तुम ठीक हो। ज़रा को आज पहली बार खौफ महसूस हुआ था। आप ही शांति आज़र एक साथ आए थे। आज़र जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ज़रा कहते हैं जनाब अपनी बाहों में उठाते दूसरी तरफ से होटल के अंदर दाखिल हुआ। जनाब तुम ठीक हो ना? वो फेंक कर से उसको एक जगह पर लेटा दी। जल्दी से वेटर से कंबल लेते उस पर उड़ गया। क्यों करे ये सब? जनाब को कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था। अगर इस पर कुछ चल रहा था तो वो दिमाग में सब बातें, मुझे मोहब्बत हो गई है, वो दर्द में थी। ये सांस उसको बेचैन कर रहा था। क्या हुआ? जनाब को समझ पानी फिक्र से जनाब के करीब गए थे, जो पूरी तरह गिरी सी चुप सी बैठी, जबकि चेहरा लाल हुआ पड़ा था। एपिक जरा गुस्से से उसकी तरफ गया था और जोर से बस से पूछा, जनाब पानी में कैसे गिरी? जरा गुस्से से रहा, जबकि उसकी आवाज़ हद से बुलंद थी, जिससे ज़्यादा बेगम गिरी। मुझे नहीं पता। जरा एपिक के खौफ से आंसू
निकले। अगर इसको कुछ भी होता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लेता। ज़रार के गुस्से से कहता, एक चिर से उसको छोड़ दे, वापस अंदर आया। जनाब जैसे ही रोहान को पता चला, फिक्र से उसकी तरफ लगा, जबकि जनाब सामने अपने किसी को देख जल्दी से गले लगी और एक बार आंसू चेहरे पर रहा हुआ। जनाब अभी डॉक्टर आ जाएगा, तुम्हें सांस लेने में। जैसे ज़रा ने देखा, उसके बदन में आग सी लगी, जबकि उस पर वो कुछ भी बुरा करना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आया, भाभी पानी में गिरी कैसे? ऊपर से ये सिर्फ पूल था। शमीर हैरान होता बोला, आप ही को तो तैरना नहीं आता, और वैसे भी आप ही को पानी से शान से बाद में बात करना। अभी जाओ इसके लिए पानी लाओ। ज़रा ने स्पार्श अंदाज में कहते उसको देखा तो शमीर आज़र ने भी हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनाब अपने हाथों साफ करती बोली तो रोहान ने फिक्र से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और गौर से उसके चेहरे को देखा। ज़रा ये देख चला था पर कुछ भी बोला नहीं था। शांति बताओ। जैसे ही ज़रा ने देखा शांति फ़ोन से फारग हुई तो मौका देख उसके करीब आया। क्या चीज़ों? शांति उलझी, वही जो अंदर बताने वाली थी। जनाब को पानी। ज़रा ने कहते बात छोड़ी। वो जैसे ही शांति को याद आया तो मुस्कुराते बोले, जीजू मैं बोल रही थी कि जनाब पापी को पानी से खौफ सा आता है। शांति मुझे हर बार जानिए, मतलब कि उसको किस किस चीज़ से डर लगता है। सब ज़रा उसको हैरान देख आराम से बोला, जीजू आप ही को पानी से, अंधेरे से, जब आसमानी बिजली गरजती है, ऐसी सब चीज़ों से डर लगता है। आप जैसे आप ही को समुंदर बहुत पसंद है। समुंदर के आसपास खामोशी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समुंदर दूर से अच्छा लगता है, पास जाने से डर लगता है, ऐसे अंधेरे से तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। आपकी शांति कहती परेशानी से बोली, जनाब इतना डरती क्यों? ज़रा ने सोते पूछा। पता नहीं जीजू, लेकिन हाँ, जब भी मैंने सब बड़ों को सुनते देखा है, यही कहते हैं कि शायद जब चाचू और चाची का इंतकाल हुआ उस वजह से हो सकता है। शांति ने शान उठाते बात छोड़ी। हाँ, एक और बात पता है आपको, आप ही को आग से भी बहुत डर लगता है, पता है जीजू? जब चाचू लोगों का इंतकाल हुआ तब गाड़ी का हादसा पेश आया था जिस वजह से आग लगी थी। मैं हैरान हूँ, आप ही जब से यहाँ आई उनको आग से डर नहीं लगा, जबकि वहाँ वो किचन में गैस वाले चूल्हे के पास भी नहीं जाती थी। जब भी आप ही ने खाना बनाना होता वो बिजली वाले चूल्हे का इस्तेमाल करती, लेकिन यहाँ वो ऐसे ही किचन में चली जाती हैं और आपके लिए खाना बनाती हैं। शांति ने अपनी हैरानगी ज़ाहिर की। थैंक्स, जनाब ने खुश होते कहा। एक और बात शांति, जो तुमने मुझे बताया जनाब के बारे में किसी चीज़ को नहीं कहना, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ चुप रहने का कहा। ऐसे क्यों जीजू? वो सब भी तो घर वाले थे। शांति समझी ना तो पूछा। आई नो, लेकिन कभी कभी अपनों में ही दुश्मन छुपे होते हैं। ज़रा सोचते बोला, वहाँ से गया क्या मतलब था? शांति के सर के ऊपर से गुजरी, जबकि किसी तीसरे ने बहुत अच्छे से सुना था। क्या हो गया है भाई आपको? शांति रोहन के साथ गाड़ी में बैठती ही बोली, जबकि रोहन कुछ परेशान था। ज़रा को यहाँ आज रहने की क्या ज़रूरत थी? जनाब ठीक नहीं है, उसको घर लेकर जाना चाहिए था। रोहन शांति को बोलने पर तलमलाया। भाई जीजू बहुत अच्छे से आप ही का ख्याल रख सकते हैं, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। शांति उसको गुस्से में देख आराम से बोली। करीब अंदर देख चुकी थी रोहन कितना परेशान था, जबकि डॉक्टर ने जनाब को चेक करते आराम करने का कहा था। जानता हूँ वो अच्छे से ख्याल रख सकता है। रोहन ने कहते गाड़ी स्टार्ट की तो शांति उसको देख उसको कुछ ठंडा देख बेफिक्र होती बाहर देखने लगी। क्या बीवी मिली है? जैसी तरह सबको बाहर छोड़ वापस आया जनाब वैसे ही सोफे पर गीले कपड़ों में कंबल में बैठी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी इतनी डरपोक होगी, इसके इतने खौफ होंगे। जरा खुद से दिल में कहते जनाब की तरफ आया। बेगम उठी, मुकाबले ने कहते आराम से उसका कंबल पीछे किया तो वो अपनी सोचों से बाहर आई, जबकि जरा उसके करीब सोफे पर रखा था और उसको वहाँ बैठाया। ऐसे क्या कर रही हो बेगम? ये हमारा बेडरूम नहीं सिटी रूम है। वो कहते सामने मौजूद डोर की तरफ बढ़ा तो जो रूम का था बता दो। आज राधा क्या है? जरा रूम के दरवाजे के पास खड़ा होते उसको अपने गोद में हिलाते इस्तफसार करने लगा। जनाब ने कुछ ना बोलना ही बचा समझा। जनाब मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकता, मेहरबानी करेंगी बेगम उसको खोलें। पहले संजीदा और आखिर में फिर से अपनी टोन में वापस आया। जनाब ने थोड़ा सा झुकते दरवाज़ा खोला तो डोर खुलता ही चला गया, जबकि जनाब शोर सी नज़रों से पूरे रूम को देखने लगी। जरा जनाब को बाहों में उठाए रूम में दाखिल हुआ और उसको आराम से ये उसके चेहरे को देखने लगा, जो रानी से रूम का जायजा ले रही थी। रूम को बहुत अच्छे से गुलाबों के फूलों के साथ सजाया गया था। हर तरफ खूबसूरत फूलों की खुशबू रूम को महका रही थी, जबकि रूम में सिर्फ एक गोल बेड मौजूद थी जिसके चारों तरफ सफ़ेद रेशमी पर्दे लगे हुए थे और एक कोने में बेड के दाएं तरफ ड्रेसिंग टेबल मौजूद था, जबकि रूम के डोर के साथ वॉशरूम का डोर था। हर चीज़ मध्यम लाइट में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। बेड के पीछे ही खिड़की जिसके आगे बहुत अच्छे से पर्दे लगे हुए थे। वैसे भी आज की रात के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अभी तुमसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं। मुकाबले ने एक सर्द आह भरते उसको नीचे उतारा। रात आज अपनी नई ज़िंदगी जनाब के साथ शुरू करना चाहता था। रानी ने आज सोचा था कि जनाब को अपने दिल की बात कहेगा, उसको बताएगा कि वो उसको कितना चाहता है, कि वो अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। लेकिन जनाब को डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया तो ज़रा ने कुछ भी जनाब को कहने से खुद को रुका। जनाब कुछ हुआ है? ज़रा ने नोट किया था कि वो एक बार भी कुछ नहीं बोली थी, तो फिक्र से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरा गया कि पार्टी में भी वो उसके आंसू देख चुका था। वो पूछना चाहता था अभी, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं लग रहा था। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं इतनी हल्की सी रोशनी की वजह से तुम्हें डर रहा? कहते जल्दी से लैप ऑन करने लगा। जब भी तुम साथ होते हो तो डर नहीं लगता, जनाब ने दिल में कहा, जबकि वो इस बात पर खुद भी हैरान थी। ओह
मैं भी ना तुम्हें बातों में लगा लिया, जब सबसे पहले तुम्हें चेंज करना चाहिए। अब के दौरान कहते उसको जाने का इशारा किया तो वो आराम से वॉशरूम की तरफ गई। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वो बाहर आई। टॉवल से अपना चेहरा साफ करती ही बेड को देखने लगी, जहाँ पर गुलाब के फूलों की पत्तियाँ पूरी बेड पर फैलाई हुई थी। जनाब चेहरा साफ करते टॉवल को रखते बेड पर आई, जबकि जरा को रूम में देखा। शायद वो बाहर गया हुआ था। वो अपनी सोच को देखती पर्दा पीछे करती बेड पर झुकते फूलों की पत्तियाँ अपने हाथों में उठाते लैंप वाली साइड पर करने लगी। बेगम क्या कर रही हो? अभी वो सब पत्तियों को रखती हटी ही थी जब जरा रूम में दाखिल होता बोला, जबकि हाथ में चाय का मग मौजूद था। जनाब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जबकि वो चलता उस तक आया था और उसको बेड पर बैठाते चाय का मग थमाया। इसको पी लो और आराम करो। उसकी टांगे बेड पर करता कमर दुरुस्त करते दूसरी तरफ साथ आते ही बैठा। क्या ये सब हमदर्दी है? अगर हमदर्दी है तो मुझे लग क्यों नहीं रहा? ये क्या तुमने पी क्यों नहीं? जनाब अभी भी सोच में गुम थी जब मग वो साइड लैम्प टेबल पर रख चुकी थी। जरा ने नमी से बोलते पूछा, क्यों कि आज पहली बार इसने किसी के लिए वो भी चाय बनाई थी। मेरा दिल नहीं, मुझे सोना है। जनाब नम आवाज़ में कहती लेटी तो जरा ने चुनकर उसको देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। ठीक है बेगम। कुछ देर की मुझे जरा बोला और लेट गया, जबकि जनाब की करवट दूसरी तरफ की थी। मैं क्या करूँ? दिल कहता है कि मोहब्बत है और दिमाग जनाब अपने आप से उलझ रही थी। क्या जरा को बोल दो कि मुझे इसकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए? नहीं जनाब, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। दिल की आवाज़ आई तो वो जल्दी से जरा की तरफ बढ़ी। जनाब आस्तीन से उठती जरा के करीब होते लेटी, यूँ कि वो जरा के सीने पर सर रख चुकी थी। बिना तो उसको सर्दी महसूस हो रही थी। जनाब क्या सर्दी लग रही है? अचानक से जरा की आवाज़ पर वो तेजी से जरा से दूर गई थी, जबकि जरा के माथे पर बल पड़े और झटक से मुकाबले ने उसकी कलाई को पकड़ते वापस अपनी तरफ खींचा। जनाब ने उसने मुकाबले के सीने से जा लगी, जबकि जनाब को हैरानी हुई। तुम ऐसे अचानक से उठ क्यों गई? मैंने बस पूछा था। जरा ने कहती बाजू का सहारा बनाते उसको कह दिया। जनाब एक मुझे से उसके सीने पर सरक सोने के लिए आंखें बंद कर दी। अभी वो उस पल सिर्फ उसको महसूस करना चाह रही थी, कि वो अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या हो रहा है। वो जरा को बोलना चाहती थी, लेकिन दिल भी कुछ कहना नहीं चाहता था। वो लड़ाई नहीं चाहती थी, और ऐसा क्यों था? वो खुद से भी वो बात कहना नहीं चाहती थी कि उसको मोहब्बत हो चुकी है जरा से। जब भी तुम मेरे करीब होती हो दिल जोर से धड़कता। जरा जनाब को सत्य देख मायने खींच बोला, जबकि जनाब आराम से उसके सीने पर हाथ रखे मुझे से सो रही थी। जरा टाइम से पहले ही जाग गया था, पर जब से वो जागा था जनाब को नज़रों के सामने रखते तकता ही जा रहा था। अभी वो ऐसे अपने दाहिने हाथ को सर के नीचे रखते बाईं हाथ से जनाब के बालों में उंगलियां चलाना शुरू की थी कि जनाब ने अचानक से आंखें खोली तो जल्दी से मुँह ऊपर करते जरा को देखा, जो उसको देख अपनी आंखों बंद कर गया था। जनाब आराम से आस्था से उल्टी बेड से नीचे की थी, मुकाबले में उसको जाते देख कर भी बदली, पर जैसे ही बात बाएं हाथ उठाया दर से आ निकली। कनक वो बाजू जनाब के सर के नीचे था। अली हुआ क्या है? जरा फ़ोन पर उन सब को लड़ते देख चिढ़ा था। एक बात हुई हो तो बोलूं, पता भी है इस सना ने मेरी गर्लफ्रेंड से क्या कहा? अली एक बार फिर गुस्से से सना को क्वेश्चन मारने लगा, जबकि जफर उमर एक साथ बैठे खूब मुस्कुरा रही। एक मिनट, अब के जरा थोड़ा गुस्से से बोला था। सना ने फ़ोन को देखते जरा को देखा। मैं बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों नाश्ते से फारग हुए थे जब अली की कॉल आई, तो जरा फ़ोन पर उससे बात करने लगा। दरअसल हुआ ये कि हम सब होटल से निकलने के बाद अपने घर ही जा रहे थे कि अली साहब की गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई कि वो कुछ ठीक नहीं है, उसको इसकी ज़रूरत है। पहले तो कॉल सुनते इसका मुंह बन गया और हमसे बोला कि तुम सब भी साथ चलो, तो जफर उन्होंने इनकार कर दिया और मैं इस मसले की शक्ल देख उसके साथ चला गया। जैसे अली ने सना के मुंह से मसले सुना तो गुस्से मैं इस मसले की शक्ल देख इसके साथ चला गया। जैसे अली ने सनान के मुंह से मसले सुना तो गुस्से से उसका गला दबाया, जिससे जरार सब देख मुस्कुराई। उन्हें जरार वीडियो कॉल पर था। फिर कोई यूँ हुआ, सनान अपना गला उससे चिढ़वाती तेज़ी से बोला कि इसकी गर्लफ्रेंड के घर पर कोई मसला हो गया था, उसको हौसले की ज़रूरत थी। ये सर साहब इसके आंसू साफ करते गया। मुझे यकीन न आए कि ये वही अली था जो लड़कियों के रोने से चिढ़ता था। जैसे ही हम फारग हुए, अभी जरार गौर से सना की बात सुन रहा था। जब जनाब चेंजिंग रूम से बाहर आई तो सीधे चलते ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते बालों को टॉवल से रगड़ने लगे। जरार ने निगाहों का ताबिया जनाब के समेत किया, जबकि अब ऊपर से नीचे तक उसको देखा था। जो ब्लैक जीन्स ऊपर वाइट शर्ट जो घुटनों से ऊपर तक आती थी वो दिलकश लग रही थी। जरा तेरा ध्यान किधर है? अभी जनाब वैसे ही मोटर जनाब को तक रहा था जब सनान की आवाज़ पर जल्दी से फ़ोन की तरफ बदल गया, जबकि जनाब ने भी चुनकर बेड की तरफ देखा जहाँ वो आराम से टांगे फैलाए फ़ोन पर मगन हुआ था। जब हम बाहर आए तो मैंने उसको पूछा कि हमारे सामने तो तू बोलता है कि तुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, जो ऐसे छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती हैं, और अब तो तू ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने था जैसे तुझसे बेहतर तो कोई हमदर्द हो ही नहीं सकता। जैसे ही सना ने हमदर्द का जनाब ने बालों को छोड़ते फ़ोन की तरफ कान लगाई। आगे से मुझे कहता है कि सच वही है जो ये हमारे सामने होता है, वैसे ही जैसे तू। जरा ने कहते मजाक किया तो जरा उसकी बात पर निर्भर हुआ और पता है क्या कहा? बोला कि वो ऐसे ही इस लड़की के साथ हमदर्दी कर रहा था। मुझे यकीन आए इसकी बात पर। मैंने जब पूछा कि मतलब क्या था? टाइम पास, मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी है, बस इसलिए आता हूँ उसके पास। वो भी खुश, मैं भी खुश। सना ने अली की तरफ क्वेश्चन उछाला तो अली ने उसको अच्छे से कैच किया, तो बस मुझे गुस्सा आ गया अली इसकी बात पर। मैंने सब कुछ उस लड़की को बोल दिया जिस वजह से ये अब ऐसे कर रहा है। सना ने आखिर में कहते फ़ोन अली की तरफ किया। अली तू भी ऐसे सोच सकता है? मुझे हैरानी हुई। जरा ने अली के सामने आते ही टांग खींची। यार मेरी नज़र में ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब ही एक दूसरे से हमदर्दी करते हैं और अपने काम एक दूसरे से करवाते हैं।
हाँ, अम्मी अभी भी ठीक कहा। अब हर कोई हर किसी के साथ हमदर्दी ही करता है। इससे पहले अली आके कुछ कहता है या ज़रा कुछ बोलता है, जनाब गुस्से से बोली तो ज़रा ने चौंका सामने खड़ी अपनी बीवी को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अरे मैं बाद में कॉल करता हूँ। ज़रा ने कहते फ़ोन बंद किया और आराम से फ़ोन रखते बेड से उठा। फ़ोन क्यों बंद किया? हाँ, मुझे अभी उसकी और बकवास सुनी थी। क्या बोल रहा था? हमदर्दी? तुम सब एक जैसे ही होते हो। मुझे लगा था पता नहीं तुम ही ऐसे हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। हर मर्द एक जैसा ही होता है। जनाब गुस्से से फट चुकी थी। जो बात वो ज़रा से कहना नहीं चाहती थी, वो बात गुस्से से सामने आ चुकी थी। 1 मिनट हुआ क्या है और ये तुम बात कैसे कर रही हो? और अभी क्या कहा तुमने? मैं कैसा मर्द हूँ? सब एक जैसे हैं। सब कुछ समझ नहीं आई मुझे। ज़रा सच में उसकी बातें सुन उलझा था। अब तो तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी, ये तो मुझे अच्छे से पता है। मिस्टर ज़रा सिकंदर अफगानी। जैसे नाम में उसको उसका नाम से लगाते हुए ज़रा ने शौक से अंदाज में उसको देखा। जब वो माथे पर 3 लाइनें घूरी जो बता रही थी कि वहाँ पर को गुस्सा आया है। मिस्टर ज़रा अफगानी, आज मैं आपको एक बात बता दूँ। जनाब ने गुस्से से तेज़ होते कहा, जबकि अभी तो उसकी सांस भी इतनी तेज़ चल रही थी कि ज़रा उसको खड़े देख हैरान हो रहा था कि आज वो कोई और ही जनाब लग रही थी। मुझे आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, समझे आप? अगर आप चाहती हैं कि मैं ये शादी ना तोड़ूँ तो आइंदा मेरे सामने कोई भी ढोंग करने की या मेरे साथ अच्छे से बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। जनाब ने उंगली उठाते हुए उसको फ़ोन किया था। जनाब, लगता है रात ठंडे पानी में नहाने की वजह से तुम्हारे दिमाग पर कुछ गहरी चोट आई है, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रही हो। मेरे ख्याल में हमें अभी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ज़रा अपने गुस्से को ज़ब्त करते दबी आवाज़ में बोला, जबकि ना कि वो इस पर कोई भी गुस्सा नहीं करना चाहता था। चोट मुझे नहीं लगी, बल्कि मेरा दिमाग और आंखें अभी खुली हैं। मिस्टर ज़रा, तो बेहतर होगा कि आज के बाद आप मुझसे दूर रहेंगे। जनाब ने लाल आंखों से उसको घूरते जबाते ये अल्फाज अदा किए। मुकाबले के सबक का पैमाना बेस हो चुका था। वो उससे आगे एक भी लफ्ज़ सुनने का रवैया नहीं था। एक जड़ से जनाब के करीब आते ज़ोर से बातों को पकड़ते दीवार से लगाया था। ये इतनी अचानक हुआ कि जनाब भी समझ नहीं पाई थी कि इसके साथ असल में क्या हुआ था। क्या बकवास की? एक बार फिर कहना, तुमसे दूर हुआ। मुकाबले ने बाजू पर अपनी उंगलियों को दबाव बढ़ाया तो जनाब की आह निकली, लेकिन यहाँ इसकी किसको परवाह थी? जनाब ने इतनी जोर से जनाब के बाजू को दबोचा था कि उसने अपने बाजू के गोद में उसकी उंगलियां गसती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन यार, जनाब एक बार भी उसके रवैये को देख नहीं डरती। ये कहना बेहतर होगा कि आज वो डर कर चुप होना नहीं चाहती थी। जब आप सुन चुके हो मिस्टर अफगानी, तो वैसे फिर से पूछने का मकसद, वैसे भी अगर आपको शौक है तो मैं आपके तसल्ली के लिए एक बार फिर कह देती हूँ। जनाब ने गुस्से से अपनी दर्द को महसूस करते तरह की आंखों में बेखौफ देखा था। आज के बाद मैं नहीं चाहती कि आप मेरे करीब आएँ या मुझसे कोई भी बात करें, समझिए? जनाब ने गुस्से से कहते जरा को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो चट्टान इंसान 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिला। अंदर के गुस्से से जनाब के बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़ा। जैसे कि जनाब ने उसकी तरफ देखी, दर्द से आने लगी, जबकि आंखों के आंसू भी अश्क की तरह बहना शुरू हुए थे। जरा गुस्से से लाल हो चुका था, पर गुस्से में उसको जनाब के आंसू भी नजर नहीं आते। बीवी हो तुम मेरी, और जब भी मेरा दिल करेगा करीब आऊँगा। एक बात बताओ, किस बात पर तुम ऐसे उड़ रही हो? समझती क्या हो तुम खुद को? जनाब, आज आखिरी बात, तुम्हारी गलती समझ छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसी बकवास की तो अपने हाथों से ज़ुबान खींच लूँगा। जनाब गुस्से से गिराया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊँगी तो ये गलतफहमी है तुम्हारी। जनाब ने भी आज सब हिसाब बराबर करने का ठान लिया था। इनफ। जनाब गुस्से से बुलंद आवाज़ में डाला। जब गुस्से से बात उछल, मुकाबले ने जनाब के गालों को दबोचा। यूँ कि जनाब से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, लेकिन आंसू बेआवाज़ आंखों से निकल रहे थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे डरती हो या नहीं, लेकिन एक बात साफ अपने दिमाग में नष्ट कर लो कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी बस, और तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होती है, समझी? अब के कहते ज़रा ने एकदम से उसको छोड़ा तो वो लड़खड़ाते पीछे दीवार से टकराई। बस, मैं भी यही चाहती हूँ। जनाब एकदम से ज़रा को अपनी तरफ मोड़ता गुस्से से बोली, जबकि ज़रा को जनाब की एक भी बात का मतलब समझ नहीं पाया। जैसे अभी तुम मुझसे बात कर रही हो ना, वैसे ही मुझसे पेश आया करो। तुम्हें मेरे सामने कोई भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारा असली रूप है ना, जो ये है। जनाब ने उंगली उठाते उसके चेहरे के गिर्द गोल दायरा बनाते कहा, ऐसे ही रहा करो। तुम्हें मेरे साथ अच्छे से बात करने की, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं। जो ये तुम करती हो ना कि तुम्हें बहुत फिक्र है या तुम बहुत अच्छे शोहर हो और मुझे खुश रखना चाहते हो, ये ढोंग करने की ज़रूरत नहीं। शट अप, जस्ट शट अप। मुकाबले को सच रहा। जनाब उसके चेहरे को लाल देख एक पल के लिए अंदर तक सहमी, जबकि एक बार फिर वो उसको बाजू से जकड़ चुका था। तुम्हें ये सब मेरा कोई नाटक लगता है? जनाब को ऐसा लगता है जैसे जनाब उसका मजाक बना रही हो। हाँ, सब एक नाटक ही तो है। तुम अपने घर वालों के सामने ये जताना चाहते हो ना कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, उसको खुश रखते हो, जबकि ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ अपने घर वालों के सामने अच्छे बने रहना चाहते हो। मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे साथ तुम्हें किसी भी किस्म की हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं। जनाब ने बहते आंसू के साथ जरार की आंखों में आंखें डाले चीखते कहा, ये क्या तुमने हमदर्दी लगा रखी है? और मैं अपने घर वालों के सामने अच्छा बनता हूँ? जरा सच में ये सब सुन उलझा था। अब तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जनाब तंतिया मुस्कुराई, तुम्हें ये क्या लगता है? जनाब, तुम्हारी इस बकवास से मैं डर जाऊँगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास से डर जाऊँगा? नहीं। ज़रा उसकी मुस्कुराहट देख तपा था और किसी जनाब के गालों को एक बार फिर शिकंजे में लिया, लेकिन इस बार गिरफ्त और भी सख्त की थी कि जनाब के कई आंसू बेआवाज़ निकले थे। तुम्हें ये सब एक नाटक लगता है? तुम्हें ये सब एक नाटक लग रहा है? ज़रा के इस पर दिल के कितने हिस्से हुए थे वो, जबकि उसको जनाब की बातों की समझ आई। वो पूरी तरह जनाब की बातों से आंखों खुला हो चुका था। जनाब को ऐसा लग रहा था जैसे जनाब ने उसकी मोहब्बत का मजाक बनाया हो। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जनाब उसकी मोहब्बत को हमदर्दी कही। हाँ, ये सब
सब एक हमदर्दी है। जनाब ने अशफाक मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए, गुना की ज़रा के हाथों की उंगली पूरी तरह जनाब के गालों में गड़ चुकी थी। अफसोस जनाब, ज़रा ने दिल से उसके चेहरे की तरफ देखा था। चली जाओ यहाँ से, तुम किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हो। ज़रा को पहली बार इतनी तकलीफ हुई थी कि ज़रा ने गुस्से से कहते जनाब को खुद से अलग करते छोड़ा तो जनाब लड़खड़ाते ज़मीन पर गिरी। वो कितनी बेदर्दी से गिरी से ज़रा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था और लंबे लंबे लग पड़ते फिर वहाँ से बाहर निकलता चला गया। वो उसको ऐसे जबते देख ज़मीन पर बैठते फूट फूट कर रोने लगी। आज कितनी तकलीफ होती उसको वो ही जानती थी। अगर मोहब्बत होती तुम कुछ तो कहता मुझे। रोने में अब हिचकियाँ बांधना शुरू हो चुकी थी और खुद से बुड़बुड़ा रही थी। वो ज़रा से लड़ना चाहती थी लेकिन वो उसके मुँह से सुनना चाहती थी कि अगर वो हमदर्दी बोलती है तो क्या वो मोहब्बत का इज़हार करता है। लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम समझते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। और जनाब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार कह सकता था ना कि मोहब्बत करता हूँ, नहीं कहा ना, क्यों ना कि सच वही था जो उसकी मामा ने बताया था। जनाब ने जोर से रोते अपनी बाजू को देखा जहाँ पर दर्द महसूस हो रहा था। जनाब ने बहुत हल्के से बाजू को छुआ था जहाँ पर ज़रा की सख्त की वजह से नील पड़ चुका था। जनाब इस दर्द को छोड़ते मुश्किल से उठी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने गई थी। बेदर्दी से आंसू को साफ किया था और हल्के से अपने गालों को देखा था जहाँ पर ज़रा की उंगलियों के निशान पड़े हुए थे और हद से ज़्यादा सिर्फ गालों को देख वो एक बार फिर टूटने लगी थी। जब भी दिल करता है इस रिश्ते को बना लो तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि खुद पर गुस्सा आने लगता है। क्यों दादा जान, क्यों आप मुझे यहाँ छोड़कर चले गए? काश मैं कभी ये शादी ना करती। काश दादा जान। जनाब को हद से ज़्यादा उस पर तकलीफ महसूस हो रही थी। कहना कुछ जान चुकी थी कि ज़रा उससे हमदर्दी ही करते मोहब्बत नहीं। जल्दबाजी की वजह से ऐसे ही किसी की ज़िंदगी में शामिल हुई। ऊपर से उस पर मुसलत कर दी गई। जनाब को सच में इतनी तकलीफ होगी इस पर वो कुछ भी अपने आसपास महसूस नहीं कर रही थी। अगर याद था तो बस ये कि ज़रा को उससे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमदर्दी है। वो एक बार फिर अपने आंसू साफ करती उठी थी और फ्रेश होने गई। जनाब तुम आ गई। आबिश जनाब को घर में दाखिल होते देख सोफे से उठी तो अब उस्मान सिकंदर सादा बेगम ने भी उसकी तरफ देखा। जी जनाब ने हल्के हल्के अंदाज में कहा जबकि वो मुश्किल से ही मुस्कुराई थी। ज़रा नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही आबिश ने गौर से जनाब के चेहरे को देखा तो हैरानगी से पीछे देख फिक्र से पूछा, जबकि आबिश हैरान थे। जनाब ने आज बहुत अच्छे से चेहरे पर मेकअप किया हुआ था पर फिर भी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। वो मेरे साथ नहीं आई, मैं अकेली आई हूँ। जनाब ने नजरें जाते कहा। वो एक्चुअली उनको ऑफिस का कोई काम आ गया था जिस वजह से वो पहले ही वहाँ से चले गए थे। जनाब आबिश के साथ चलती उस्मान अफगानिस्तान बेगम तक आई थी। ऐसा भी क्या काम कि वो अपनी बीवी को घर तक छोड़ कर नहीं जा सकता था? देखा बाबा, आपके साथ धंधे के काम जनाब बेटी अकेली घर आई है। उस्मान सिकंदर अफगानी को तो मुझे मौका चाहिए। हमेशा की तरह वो शुरू हो चुके थे। जनाब बेटा सिकंदर अफगानी से भी आते ही जनाब की तरफ गई। दादा जान को उनको काम आ गया था बस इसलिए चले गए। लेकिन फिर ऑफिस से गाड़ी आ गई थी, ड्राइवर ही मुझे छोड़कर गया है। जनाब ने अब के उस्मान अफगानी की तरफ देखते हुए बात को मुकम्मल किया। ठीक है जाओ तुम आराम करो। सिकंदर अफगानी प्यार से उसके माथे पर बुस्सा देते बोले तो जनाब छोटे छोटे कदमों उठाते ऊपर की तरफ गई। उस्मान हर वक्त मेरे पोते के पीछे हाथ धोकर मत पड़ा करो, समझे? एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। इस वजह के उस्मान अफगानी अपने बाप के सामने अपनी सफाई में कुछ कहते सिकंदर अफगानी के रफ्तार आवाज़ पर चुप हुए। ये मत बोले उस्मान के अब ज़रार की शादी हो चुकी है। वो कोई बच्चा नहीं है कि उसको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ना हो। ये जो तुम हर वक्त जनाब बेटी के सामने उसके शोर को लेकर ऊंची आवाज़ में बात करते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अभी देखा तुमने कैसे तुम्हारे कहने पर जनाब के चेहरे के रंग बदले। क्या वो अब अपने शोहर की हर बात की सफाई दिया करेगी? आइंदा फिर कभी ऐसा ना हो। सिकंदर अफगानी गुस्से से बोलते अखबार खोल कर देखने लगे तो आबिश भी सोचते किचन की तरफ गई। पापा आपने तो कसम खाई है कि अपनी बेटी की हर बात को उसके मुंह पर मारेंगे। आप हमें तो चुप करवा देते हैं, ऊपर से मुझे ऊंचा बोलने की भी इजाज़त नहीं। लेकिन कभी अपने पोते को देखा है उसकी दीवारों को तो कभी आपने लगाम नहीं डाली। एक बात साफ है कि आपका जोर हम सब पर ही चलता है पर अपने पोते की तो कोई गलती भी कभी नज़र नहीं आती। और अभी आपने क्या कहा कि हम जनाब बेटी से सफाई मांग रहे थे? नहीं बाबा जान, उस्मान अफगानी को गुस्सा रहा था। हमें फिक्र थी आखिर वो हमारी बेटी बनी है इसलिए आते हमने उनसे पूछा था बस। उस्मान अफगानी मंजूर कबड्डी से कहते सामने बैठे अपने बाप को बोलने लगे। पहली बात ज़रा जनाब मियाँ बीवी हैं, ठीक है? आपने फिक्र से पूछा लेकिन इसके सामने उसके शोर को लेकर कुछ बुरा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात तुम सब कान खोल कर सुन लो। अब किस सिकंदर अफगानी ने कहते कहते बेगम की तरफ देखा जो चुनकर उनकी तरफ मतवज्जो हुई। जनाब और ज़रा मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी में किसी भी बात पर कुछ भी हो जाए उनके दरमियान आप सब अपनी टांग इनके रिश्ते में नहीं अड़ाएंगे। चले एक और हुक्म, अपनी बीवी के साथ कुछ भी करता रहे और हम सब खामोश तमाशों की तरह तमाशा देखते हैं और इसको फिर भी ना बोलें। वैसे पापा एक बात बताएं, आप सब ये रूल्स हमारे लिए तो बना देते हैं, कभी अपने पोते पर भी कुछ काम कर लिया करें। उस्मान अफगानी को तब ही गए थे। उस्मान एकदम चुप। बहुत सुन लिया मैंने, मेरा पोता कैसा है, इसको कब लगाम डालनी है और कब उसकी रस्सी खींचनी है ये हमें तुमसे बेहतर पता है। तो बेहतर होगा कि अब हमसे कोई भी बुराई हमारे पोते की ना करना। आबिश बेटा जल्दी से चाय ऊपर ले आओ। सिकंदर अफगानी ऊपर ऊंची आवाज़ में कहते वहाँ से गए तो उस्मान अफगानी भी गुस्से से वहाँ से बाहर गए। मरहबा सब नाश्ते के दिनों मौजूद थे जब उस्मान अफगानी सब पर एक नजर डालते नीचे पर ब्रांच मांगा। मरहबा सब ने एक साथ वापस किया। ये ज़रार कर रात भी घर नहीं आया। उस्मान अफगानी ने आज फिर ज़रार को आड़े हाथों में मैदान में खींचा जबकि अब की बात सबने उनकी तरफ देखा। सिकंदर अफगानी का मुँह बना था जबकि अपने बेटे पर गुस्सा भी आ रहा था कि आज फिर ज़रार पर बात की जा रही है, वो भी उसकी गैर मौजूद नहीं। शमीर वैसे मैंने देख रहा हूँ कि पापा कुछ ज़्यादा ही गुरु के पीछे पड़े नहीं रहते। आज़र को भी गुस्सा आया था कि वो ज़रार को बहुत प्यार करता था वैसे ही जैसे सब कहते थे। फिक्र मत कर, अगर पापा
شیر ہیں تو میدان میں دادا جان بھی ہیں جو سوا شیر ہیں. اور ویسے بھی جب تک دادا جان بھائی کے ساتھ ہیں کسی کو بھی بھائی کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں. دادا جان اکیلے اپنے کریلے جیسے ہمارے باپ کو سنبھال سکتے ہیں. شمیم نے بھی ہاتھ صاف کیا. ویسے ہمارے پاپا اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کریلے تو گھر پر کوئی بھی شوق سے نہ کھاتا ہے اور نہ کوئی بناتا ہے. آج نے سب بحث چل سیدھے ایک سرگوشی کی. یہ بات نہیں یار، پاپا کو بھی بھائی سے بہت پیار ہے، صرف پیار دکھانے کا انداز ایسا ہے. اب کل کی بات لے لو. پاپا کل آفس گئے تو پاپا اس لیے کہ بھائی سے شاید ملاقات ہو جائے، لیکن ہمارے بھائی کے موڈ کا بھی کوئی کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کو پہلے ہی میٹنگ سے فارغ ہو کر وہاں سے چلے گئے تو پاپا کی ملاقات نہیں ہوئی. بس پاپا کو غصہ آ گیا اور سارا غصہ مجھ پر اتار دیا. شمیم نے آخر کی بات سامنے اپنے پاپا کو بولتے دیکھ کہی. عثمان ایک تو میرا پوتا اتنی محنت کرتا ہے، تمہارے بزنس کو اور اونچائیوں پر لے جا رہا ہے، اور تمہیں میرے بیٹے پر فخر محسوس کرنے کی بجائے اس پر تنقید ہی کرنی ہوتی ہے. ویسے بھی میری بات ہوئی اپنے پوتے سے، وہ بھی اپنے کاموں میں بزی ہے. سکندر خان نے کہتے جناب کی طرف دیکھا جو ابھی کچن سے آئی تھی. ایسے بھی کیا ضروری کام بابا کے صاحب زادہ نواب کے پاس گھر آنے کا ٹائم ہی نہ ملے. 15 دن میں ایک بار ہی اپنی شکل دکھا جاتا ہے. عثمان نے غصے سے پھر بڑھ گئے. کچھ دن سے نہ جناب کی زرار سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی زرار نے کوئی بات کی. وہ اس دن کے بعد گھر بھی نہیں آیا اور نہ ہی فون پہ کیا. جناب بھی زرار کی وجہ سے پریشان تھی. وہ غصہ تھی لیکن اب اس کو اپنے شوہر کی فکر بھی تھی. لیکن اپنی نہ کی وجہ سے نہ اس نے فون کیا اور نہ ہی اس نے کیا. دیکھو عثمان، ایک بات بتا دو، چاہتے کیا ہو ہمارے پودے سے؟ اب کے پاس سکندر نے کسی سے بن کہا تو سب ہی ڈرے. ان کو ایسے دیکھ جب کہ ہمدان بھی تبھی ٹیبل پر آئے. اگر تم نہیں چاہتے کہ میرا پوتا کام کرے تو بتا دو، میں ابھی اس کو گھر بلا لیتا ہوں. کل سے تم اپنے آفس میں سارا کام خود کرنا. میرا پوتا کہیں نہیں جائے گا. سکندر نے غصے سے کہتے اٹھے تو ڈر کر سبھی اٹھے. بابا میرا یہ مطلب نہیں تھا، سوری. عثمان نے ڈرتے اپنے باپ کی طرف لپکے تو شمیر آزر ہمدان نے مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا. ٹھیک ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. سکندر خان نے بھی سب کو بولتے واپس سے بیٹھے تو سب خوشی سے واپس ناشتے پر لگے. جناب ویسے تم زرار کو مس کر رہی ہوگی نا، ہے نا؟ صابر اس کے ساتھ کب کی بیٹھی ہوئی ٹی وی پر نیوز لگائے دیکھ رہے تھے، لیکن جناب کا دھیان کہیں اور ہی تھا. جب اس نے ہنسی سے انداز میں پوچھا نہیں ارے جناب اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ تم مجھ سے کوئی بھی زرار کی بات شیئر کر سکتی ہو. آپ بھی جانتی تھی پارٹی پر ایک دن زیادہ بیگم نے جناب سے کیا کہا. بس اس لیے وہ جاننا چاہتے تھے کہ جناب اور زرار کے دل میں سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں. چاچی میرا مطلب کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کام میں بزی ہے، اس لیے جناب نے کہتے بات چھوڑ کے نا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا کہے، کہ وہ اس کو یاد کر رہی تھی یا اس کے لیے پریشان تھی. جناب زرار تمہیں پہنچاتا ہے. ابھی صوفی زور سے جناب والی سائڈ پر آتے ساتھ بیٹھی دھیمے سے انداز میں بولی. جانتی ہوں اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے صاف محبت دکھتی ہے. چاچی کیا بتاؤں آپ کو، محبت نہیں، اس کو ہمدردی ہے مجھ سے، صرف ہمدردی. جناب دل میں سرد بڑھتے مشکل سے مسکرائی تھی. مانتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنے والے، لیکن اس میں سب گھر والوں کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ ہر کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہے. فون کرتی ہوں. جناب زرار کی وجہ سے بہت پریشان تھی. اور وہ کیوں تھی؟ وہ خود بھی سمجھنے سے انجان بن رہی تھی. نہیں جناب اس نے کون سا تجھے ایک بار بھی کال کیا کہ ٹھیک سے گھر پہنچ گئی؟ مانتی ہوں لڑائی ہوئی ہے ہماری، لیکن بندہ ایک کال کر لیتا ہے حال چال. کیا جناب تو بنا وہ کون سا محبت کرتا ہے جو اس کو تمہاری فکر ہوتی ہے؟ آپ کے پیچھے سے سب کو یاد آیا تھا پل میں، لیکن فون کر لیتی ہوں. دل تھا کہ بے چین ہو رہا تھا. ایک بار اس کے پاس نہ رہتا تھا. جلدی سے فون اٹھاتے کال ملائی. جاری ہے.